So hands on your heart, inhale slowly, exhale slowly. I will take my Guru's name. You can take your Guru's name, okay? To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru Grandmaster Chua Kok Sui, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, angels of astrology, angels of learning, angels of Vastu Shastra, angels of internet, we invoke for your blessings. May the session be filled with a lot of knowledge, intelligence, illumination. May all the participants be blessed with a lot of abundance, prosperity, happiness, joy, good luck energies, divine protection, divine mercy, divine guidance, and divine help. Thank you, all the angels, for being present here. Thank you in full faith. Inhale the blessings. Atma Namaste, everyone. Welcome, all of you. So, I will keep everybody mute. Atma Namaste, Susie. Give me a second. So, who am I? I'm Dr. Tushar Charan, and I specialize in 2-3 things. Main thing is astrology, सबसे ज़्यादा ज्योतिष, then Vastu, and then numerology. Now, why Vastu and why numerology? Because, you know, sometimes when you meet your client, there are many factors. आपको उसको पूरा as a whole ही देखना पड़ता है. तो आज आप लोगों के लिए भी मैंने वास्तु की क्लास ली है for this reason only. So today it's a very normal basics of Vastu class. Then in December, I'm having a series of session, you know, maybe 7 days or maybe 8-9 days. I am not too sure because I have the content, but I don't know how many days it will take. So all of you who have joined today's session, for you, the price of the session would be 1100 rupees. And the people who are fresh and new people, for them, it's going to be 1500. This is one part. So what we will discuss in that elaborate session would be how to decide which plot you should buy, what type of plot, what are the slopes, and elaborate discussion on every zone. So today we will discuss about 8 directions. In that we discuss about 16 or 64, 45 devtas, everything we will talk related to Vastu. So that's going to be a typically Vastu class. Today it is more on the knowledge which we all should know, basics. Now, what is Vastu? Vastu is the place, the directions, the structure, everything about the place where we live. Hindi में word बोलते हैं वास करना. So Vastu is about that वास, जहाँ हम रहते हैं. If anybody has a language barrier, please put in the chat, so I will repeat the session. Thank you, Neha. So, yeah. So in the end, I will take the questions. 10-15 minutes I will give आराम से सबके questions को answer करूँगी. बीच में let us concentrate on the knowledge I am giving you. I would be giving recording for 1 day, so you can make your notes. You can take the screenshots also. But today, try to listen and grasp whatever I am teaching. Okay. So now, what is Vastu? Vastu is Vastu Shastra is supposedly a doctor of your house. So we have this medical doctor. हमारे body के लिए वो होता है. हमारा डॉक्टर होता है जो when we go to him that these are the issues we are suffering, and वो आपको उस हिसाब से दवाई देता है. अभी वास्तु शास्त्र का क्या काम है? आपके घर का देखने के लिए, घर का डॉक्टर है वो, you know,
how are the things placed at home, or are you suffering? तो अभी ज्योतिष भी you should know, because you know you have seen people living in south facing house also, they are very prosperous. You have seen people living in north face house also, but they are not doing that good. क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी एक रीजन हो सकता है, इसके पीछे न्यूमरोलॉजी भी एक रीजन हो सकता है, मे बी हाउस नंबर का कुछ है, जो ओनर है उसके साथ हाउस नंबर नहीं रेजोनेट हो रहा, हाउस नेम रेजोनेट नहीं हो रहा. तो इसके लिए नेक्स्ट मंडे वी हैव अ न्यूमरोलॉजी क्लास विच विल अगेन टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ कैसे अपना नाम को आप रेजोनेट करें अपने डेट ऑफ बर्थ से. यू कांट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, बट सर्टनली नाउ वास्तु में भी नंबर्स का बहुत इफेक्ट है. आगे एज वी मूव फॉरवर्ड आई लेट यू नो हाउ इट इफेक्ट्स. सो एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा किन्हीं लोगों को साउथ फेसिंग सूट होता है, किसी को वेस्ट फेसिंग सूट होता है. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल टॉक इन आवर एडवांस वास्तु का क्लास. टुडे व्हाट वी डिस्कस इज द डायरेक्शंस, देन 5 एलिमेंट्स, 5 जो एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ, इन सब से हमारी बॉडी बनी है, इन सब से ही हमारा घर बना है, जिस जगह हम रहते हैं. और वास्तु में प्रॉब्लम क्या आती है, कब आती है? जब इन 5 चीजों में इम्बैलेंस क्रिएट होता है. सो टुडे आई विल मेनली एक्सप्लेन द डायरेक्शंस. ये पांचों तत्व, 5 एलिमेंट्स, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइफ एंड व्हाट आर द जोन्स, व्हाट वी हैव टू सी. ये and few remedies I'm going to talk. So you can stay in the group. Every now and then I will keep sharing remedies in the group also, and maybe we take another class also for remedies. So Vastu ka, now today's recording is specifically for you people. Don't share it with your friends, because as you have paid for this class. And secondly, knowledge आप बांट सकते हैं. You can, there are remedies which you can share with your friends. But understand one thing. आप डॉक्टर के पास गए, आपके पेट में दर्द, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, जरूरी नहीं है आपकी फ्रेंड को पेट में दर्द है वो सेम वजह से है. सो ब्रॉडर वाली जो रेमेडीज है वो शेयर करें, बट डोंट, क्योंकि क्या होता है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट वांट टू स्केयर यू. So there was this friend of mine जिन्होंने नया वास्तु सीखा. So there are 3 types of vastus which are prevailing. One is Vedic वास्तु, जो हमारे वेदों से आ रही है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी आपके साथ. Then there is one person who has created, only one person who has created महावास्तु. I don't remember his name, सुदीप भंसल या I don't know, जो भी उनका नाम है. उन्होंने महावास्तु का एक क्लास करा. उसका फाउंडेशन वैदिक वास्तु ही है, but seeing to the times he have added few things. Okay, so that is also good. I'm not criticizing or anything, पर main तो वैदिक है. Then there is feng shui. Feng shui क्या है? Flow of energy of air and water. उसके बारे में वो बात करता है. तो मेरे सारे रेमेडीज में सारी चीजें आ रही है, बट मेनली आई एम अ फॉलोअर ऑफ वैदिक वास्तु. और जो भी टिप्स, जो भी नॉलेज आपको दूंगी वो मैंने वैलिडेट किया है, मेरी लाइफ में वो सारी चीजें देखी है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने महावास्तु का कोर्स किया. शी केम टू माय प्लेस एंड वी हैड डन अ स्पेशल रेमेडी. माय फादर इज अ वास्तु शास्त्री ना, तो उन्होंने बताया एक रेमेडी हमने करी हुई थी. हमने मिरर लगा रखा था साउथ ईस्ट जोन में to avoid certain problems. She came and she was like, no, east zone, south east zone में मिरर नहीं होता है, ये नहीं होता. मुझे लगा ठीक है, नहीं है. Nothing against that girl, okay, nothing against that girl, because मेरी पत्री, मेरे ट्रांजिशन, जिनने एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीखा है उनको पता है ट्रांजिशन भी होते हैं प्लैनेट्स के, there are many things. So उसके कहने पे हमने वो मिरर हटा दिया. 2 months we went through a hell like of a situation in our life, and we lost also somebody very precious to us. Although वो होगा, predestined होगा, तभी हमने वो बात मानी, वो मिरर हटाया.
फिर उसके पीछे पीछे ही हमारी प्राणिक हीलिंग की भी प्राणिक वास्तु प्राणिक फेंगशुई क्लास हुई, उसमें भी वही रेमेडी दी गई जो मेरे फादर ने बताई थी। इमीडिएटली वापस मैंने वो मिरर्स प्लेस कर दिए, वापस थिंग्स वर फाइन विद माय लाइफ। बट इमेजिन, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, go to a proper consultant, get proper consultancy, you know, and validate करें आप, और वास्तु का इफेक्ट आ जाता है in a week, you come to know through certain things. So today I am talking about broader things and the things which I have experienced in life. So I am also human only, but मैंने बहुत सारा research किया है, validate किया है, then I am sharing it with you. Samitya, so whatever point you do not understand, please let me know. I will try that every statement I try to talk in Hindi also, in English also. मैं हर sentence को English या हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी. But good news is all the slides are in English. So let us share the slides first. So this is Vedic Vastu Shastra by your host, Dr. Tushar Charan. Now, as I told you, what is Vastu? Vastu is part of Vedas. So, Atharv Ved, पर वो उसके बारे में भी पूरी detailed story I will share in the main Vastu class, where I will tell you how the Vastu came into being. And there is one more factor, that is Vastu Purush, जिसकी हम आज बात नहीं कर रहे, वो भी उसी क्लास में बात करेंगे. Because it's a detailed, you know, आप बीच में से MIJK उठा के किसी को पढ़ाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. So that is A to Z, and it was not possible to cover in 2 hours. So we will take a series of sessions. So today we are talking about Vastu. Vastu is what? Vas. Vas is to live. The place where we live, we talk about that place. So that place is made up of 5 elements. Panch Mahabhut, उनके द्वारा वो बना हुआ है. Yes, you can take the screenshots, okay? Or maybe you concentrate on learning right now. Now these are 5 elements. Prithvi, that is earth. Jal, that is water. Agni, that is fire. Vayu, air. Akash, space. So Vastu directly 5 elements से associated है. हमारे घर में कहीं भी एक भी element का imbalance हुआ and we suffer. So all these zones are giving us specific things. तो जो भी zone affected हो गया, वो वाली problem हमारी life में आ जाती है. So there are so many things, you know, हमारी health, हमारी wealth, हमारे बच्चों का पढ़ना, हमारा relationships, हमारी spirituality, all these things get affected. So as we move forward, we are going to cover as much as we can. So now Vastu and directions. So Vastu का main काम क्या है? Directions. Now आप अपने घर की direction को कैसे जाने? ये बहुत ज़्यादा question रहता है. So I will tell you. So how do you come to know the direction of our houses? आजकल best बात तो क्या हो गया? iPhone में there is a compass, inbuilt compass ही है, and in other phones also you can download. So first you get into your house and facing towards outside. घर से बाहर देखते हुए उस compass को रखें हाथ में and then check the direction. Is it north? Is it east? This is how you come to know आपका house क्या facing है. This is one thing. Now how to judge घर के बाकी areas कि kitchen कहाँ रखे, bedroom कहाँ रखे, उसके लिए try to come into the center of your house. आपके घर का बीच जो है, जो भी center है, of course plot का बीच और वो सारी बातें हम advance वाली class में करेंगे. आज के लिए मैंने भी यही follow किया है all these years till I did not do my
स्पेसिफिक वास्तु क्लॉज यही फॉलो किया है, ये वर्क करता है। आप अपने सेंटर में आए घर की तरफ एंड देन फेस टुवर्ड्स योर मेन एंट्रेंस, आपके मेन गेट को फेस करें, वहां पे आप सेंटर में आके कंपास को होल्ड करें एंड फ्रॉम देयर यू जज द डायरेक्शंस, फ्रॉम देयर यू मार्क वेयर इज योर नॉर्थ, वेयर इज योर ईस्ट, वेयर इज योर वेस्ट, दैट यू कैन नो। या एक भी डायरेक्शन आपको पता चल गई तो भी ठीक है। इफ यू नो दिस इज नॉर्थ, उसका बैंग ऑपोजिट साउथ होगा, उसके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। दिस इज हाउ यू कम टू नो योर डायरेक्शंस। या एवरीवेयर, जो भी जगह, आपका ऑफिस, आपका फ्लैट, पहले आप अंदर आइए, फिर बाहर देखते हुए यू सी व्हाई इट इज सीन, बिकॉज यू नो बाहर से गुड एनर्जी आ रही है, बाहर से हमारे घर के अंदर आ रही है। तो अगर आपने बाहर खड़े होकर कंपास को वैसे रख के देखा अपने घर का डायरेक्शन, इट्स नॉट राइट। घर के अंदर आइए और वहां से देखिए कि व्हाट एनर्जीज यू आर अट्रैक्टिंग इन योर होम, दैट इज द बेस्ट पार्ट। So then again we go to our slides. So am I clear on this? Or maybe I can repeat in the end if somebody wants to know, because so वास्तु में सबसे बड़ा काम है डायरेक्शंस का, दिशाओं का। सो दिशा में एक वर्ड आता है 10। सो वैदिक वास्तु में हम 10 दिशा को मेन प्रायोरिटी देते हैं। कौन सी 10 दिशा हो गई? 4 तो हो गई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। फिर इसमें 4 सब डिविजन्स क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शंस। फिर एक हो गया आकाश, एक हो गया पाताल। ये फेंगशुई में आकाश पाताल नहीं है, हमारे इधर इन वैदिक वास्तु वी बिलीव इन दिस, आकाश इन पाताल, ठीक है। नाउ एवरी जोन, हर दिशा, तो ऑफ कोर्स जोन एक बड़ा सा एरिया होता है, तो वो भी अगेन इट्स एडवांस क्लास का स्टडी, बट फॉर नाउ इफ वी टेक हमारा जो कंपास हमने लिया और उसमें जो नॉर्थ जोन आ रहा है, दैट नॉर्थ जोन इज जोन ऑफ वेल्थ एंड करियर, और इन अनदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं, इट्स अ जोन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारी लाइफ में पैसे का धन, अब ये कुबेर देव का स्थान है, ठीक है। कुबेर देव क्या थे? कुबेर देव थे लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष। सो पैसे को आपको समझना पड़ेगा। एक जगह होती है जहां से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक जगह होती है जहां से पैसा कमाया जाता है, एक जगह होती है जहां पे पैसा स्टोर किया जाता है। I think I will be able to tell all this in this today's class. Maybe after the slides we will take that. So for now, north is the direction of Kuber. North हमारा पैसे का, wealth का, career opportunities का zone है. So the most positive zone, most peaceful zone. Great. Somebody has. Please do not unmute yourselves because दूसरों को आवाज नहीं आएगी। In the end, I will address every question. Don't worry. The idea is to teach. Okay. So north zone should be open, should be clutter free. Why clutter free? Because this is our subconscious mind. हमारा दिमाग, हमारा माइंड की ये जगह है, और अगर आपने इसको क्लटर कर दिया तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा, देयर वुड बी नो क्लैरिटी। सो यू नो, कोई भी आपके पास आता है या आपको घर में ऐसा यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स दैट सम मेंबर ऑफ योर फैमिली इज फेसिंग दिस कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं मिल रही या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही उसको लाइफ में, no matter how talented he is, but he's not able to understand the opportunities, then check your north direction. कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ किया है। अभी क्या होता है, पीपल से कि नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ भगवानों का जोन है,
तो वहां पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई विल टेल यू इसका रीजन। बट जब आपको ऐसा बोला जाता है, आप क्या करते हैं, उस बाथरूम को वहां से हटा के उसको स्टोर रूम बना देते हैं। अब स्टोर रूम में क्या होगा, स्टोर रूम में आप कितना भी ऑर्गेनाइज पर्सन हो, आफ्टर सम टाइम क्लटर हो ही जाता है उसमें। देन वन मोर थिंग यू डू, यू इन द स्टोर यू प्लेस ऑल काइंड्स ऑफ मेटल्स। आप स्टोर रूम में क्या करते हैं, हर चीज रख देते हैं, कबाड़ भी रखते हैं, आयरन भी रखते हैं। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, भगवानों का डायरेक्शन है, ये वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है। अब उधर आपने अगर मेटल रख दिया, लोहा रख दिया, इट्स नॉट गुड। सो नेवर हैव योर स्टोर रूम ऑल्सो देयर, डू नॉट हैव, पीपल डू दिस मिस्टेक। So what you can have your garden, you can have your porch, you can have balconies, you can have windows, बहुत उसको open रखिए। Then money क्या है, money is like water in our life, you know, water जो energy होती है, that is fluidic, money is also fluidic. So north zone से पैसा आता है, तो उसको हमको बहुत clear रखना है। देन कम्स द साउथ जोन, नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, साउथ। तो जो पैसा हमने नॉर्थ से लिया है उसको हमको साउथ में अक्यूमुलेट करना है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो, आपने जो पैसा इकट्ठा किया उसी से आपका नेम फेम होता है ना। सो दिस इज योर नेम फेम वाला जोन, योर प्रेस्टीज वाला जोन। सो ऑल दोज पीपल who are into business and everything, उन लोगों को अपना साउथ पार्ट जरूर, सदर्न पार्ट ऑफ योर हाउस यू शुड चेक। सो इट शुड नॉट हैव अगेन क्लटर, उधर नहीं होना चाहिए। देन उधर ओपनिंग्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने प्रॉस्पेरिटी सेशंस लिया था, मैंने बताया था साउथ यम की दिशा है। सो हमको यम भगवान को ओपनिंग नहीं देनी है हमारे घर में, उसको हमें क्लोज रखना है। इन केस यू हैव विंडोज, देन पुट कर्टन्स जो पीछे उनका बहुत अच्छी लाइनिंग हो, सो ऑब्स्ट्रक्शन टाइप क्रिएट हो जाए वो, ठीक है। सो साउथ डायरेक्शन के आई फॉरगॉट टू टेल यू, नॉर्थ डायरेक्शन का जो प्लैनेट है वो है मरकरी, बुद्धि का प्लैनेट है। साउथ डायरेक्शन का प्लैनेट है मंगल, मार्स। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर क्या आएगा, रेड कलर आएगा। बट ऑब्वियसली यू कांट हैव द होल रूम एज अ रेड कलर। You can have certain effects, you know, एक wall को कर दिया, curtains ले लिया, that way you can do. So this is the main portion of your house where you should store your wealth. I will again, please remind me in the end, I will talk about that also. Now east zone. East zone क्या है? East zone हमारे gods की direction है. Remember the sun rises from the east. सो इट इज लाइफ गिविंग फोर्स वाला जोन भी है ये। तो हमें ईस्ट क्या देगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको क्यों ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, बिकॉज दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम लॉर्ड सूर्य। व्हाट इज लॉर्ड सूर्य? लॉर्ड सूर्य इज ब्राइटनेस, लाइट इन योर लाइफ। सो लाइट इज नॉलेज, इंटेलिजेंस ऑल्सो, लाइट इज फेम ऑल्सो। सो ग्रोथ भी है ये, एनर्जी गिविंग ग्रोथ। Remember those who have studied astrology with me, सूर्य क्या है, vitality also, growth भी करता है हमारी लाइफ में। So east zone is for that. Now इसके लॉर्ड है लॉर्ड इंद्रा। So ये भी एक ऐसा जोन है जो आपका क्रिएटिविटी, आपका माइंड का जोन हो गया, क्योंकि इंद्रियां क्या होती है, हमारी इंद्रियां होती है ना, हमारी हैबिट्स होती हैं, ऑल दिस। सो दिस इज दैट जोन। तो जो लोग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे, दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, दे आर नॉट वेरी क्रिएटिव, दे कैन सिट इन दीज जोन्स एंड थिंक एंड मेक strategies. There is one more direction which I'll talk about later. Now west zone. West zone is zone of stability and strength. एक चीज याद रखें, नॉर्थ वेस्ट अलग चीज है, वेस्ट अलग चीज है। वेस्ट जोन हमारे को स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है,
और इसके ओनर भी लॉर्ड वरुण है। और अगेन ये नेम फेम के चक्कर में, तो ये काम के सिलसिले में वेस्ट इज अ गुड डायरेक्शन, बट टू स्टे इज साउथ। बेडरूम के लिए साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट इज फॉर वर्क। इसमें भी ओपनिंग्स नहीं रखनी है। अब आप एक चीज समझना, नॉर्थ से जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको हमने संभाल के रखा साउथ में, ईस्ट से जो लाइफ एनर्जी सब कुछ आ रहा है उसको हमने वेस्ट में संभाल के रखा। ओके, तो एक जगह से चीज आती है, एक जगह हम उसको संभाल के रखते हैं। तो अगर वहां पे ओपनिंग हो गई तो इट विल डिस्पेल, इट विल गो अवे, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। Then comes northeast. Now northeast is also a beautiful direction. Why? Because इसमें north की energy है, which is opportunity, east की energy जो divine energy भी है, और इस direction के deity है Lord Shiva. And the planet, mainly the planet for this direction is Jupiter. So यहाँ पे yellow color, colors की मैं बाद में बात करती हूँ, yellow color होता है। और एक और चीज आप क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में, एक एस्ट्रोलॉजी में एक योग होता है गज केसरी योग। तो अगर आपकी पथरी में गज केसरी योग नहीं है, मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं होता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ नॉर्थ डायरेक्शन में यू कैन हैव अ वाटर एलिमेंट। सो आपका ट्यूबवेल, आपका पानी का जगह, सब कुछ नॉर्थ, एंड दिस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज जुपिटर। ओके, वहां पे यू कैन हैव योर गॉड्स, पूजा रूम आप बना सकते हैं। सो आपके घर में एक गज केसरी योग वाला जोन बन जाएगा, वाटर एंड गॉड्स, दे विल मेक अ जोन लाइक दैट। एंड हियर द स्टूडेंट्स कैन सिट एंड स्टडी। बच्चों का आप रूम रख सकते हैं, बच्चों का हम दो जगह रूम रख सकते हैं। देयर आर टू फिलॉसफीज, वन इज नॉर्थ ईस्ट, द अदर वन इज साउथ वेस्ट ऑल्सो। व्हाई साउथ वेस्ट? बिकॉज साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की जगह है, तो बच्चे वहां पे, बच्चे नहीं, अडल्ट्स कैन सिट देयर, यू नो, हायर स्टडीज वाले लोग, बट उनको फेस नॉर्थ ईस्ट ही करना है। सो यू शुड नॉट हैव टॉयलेट्स इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये भगवान का स्थान है। तो अगर आपके भगवान नहीं भी हो सकते इस जगह, somehow you have done your house in a particular way, you can place a picture of some god. गणेश जी की फोटो लगा दीजिए। गणेश जी क्या है? गणेश जी इंटेलिजेंस भी है, गणेश जी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स निकालने वाले भी हैं। सो यू कैन प्लेस अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड गणेशा। रेमेडीज हम बाद में बात करेंगे। देन कम्स साउथ ईस्ट। नाउ साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर, अग्नि देव की डायरेक्शन है। अग्नि क्या करती है? फायर ब्रिंग्स एनर्जी इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे वी शुड नॉट हैव अ बेडरूम, बिकॉज यू नो बेडरूम होगा आपका तो क्लैशेस होंगे, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, बिकॉज अग्नि क्या करती है? फायर एनर्जी। You should have your kitchen here. Best place to have your kitchen is southeast direction. In case you're not able to have your kitchen here, you should place a red thing here, red bulb. क्योंकि red, we need this red energy. मंगल की एनर्जी हमें लाइफ में चाहिए, सूर्य की भी एनर्जी होती है साउथ ईस्ट वाली, so we need that. Then comes so in these the southeast का element क्या हो गया? wood element. So आपका जो kitchen है, you should have all the cabinets, everything made out of wood. That will enhance that zone. Then comes southwest. इसको बोलते हैं नृत्य कोण। यहाँ के देवता, नृत्य कोण बोलते हैं हिंदी में। यहाँ के देवता है नृत्य, देवता नहीं, डेमन बोलेंगे उनको, यू नो, बिकॉज ये जोन, एज आई टोल्ड यू, यम का दिशा हो जाती है साउथ। इसका प्लैनेट है राहु, बट दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जोन ऑफ योर हाउस। अब कई बार ऐसा होता है, एक छोटा सा आई विल शेयर एक्सपीरियंस, वो मेन वास्तु की क्लास में होगा, कि साउथ वेस्ट में हमें बोला जाता है कि बेडरूम होना चाहिए, बट यू नो जोन से एक लंबा स्पेस होता है, तो उसमें एक जोन होता है साउथ साउथ वेस्ट, वो डिस्पोजल की जगह है, वो आपका वेस्ट को हटाने की जगह है। एंड इफ यू प्लेस योर बेड देयर,
then you tend to get health issues. You suffer from disposal कहाँ से होता है? Stomach से होता है ना. You tend to have these problems, stomach related problems. So you have to take care. Then comes northwest. Now northwest के again direction के देवता कौन है? Vayu Dev. The deity is Vayu. It is a wind element, and ये वाला थोड़ा सा अनस्टेबल जोन होता है. सो यहाँ पे भी बेडरूम अगर आपका होगा, यू कैन हैव दीज टेंशंस. एंड सो डॉटर्स को यूजुअली नॉर्थ वेस्ट जोन दिया जाता है, बट अभी वेरी रिसेंटली वी एक्सपीरियंस समथिंग, सो डोंट गिव यंग डॉटर्स दिस जोन. You can give the marriageable girls this zone so that they can get married and they can quickly move. So जो लोग business में हैं, they can put their stuff in this zone because it's a direction जो stability नहीं है उसमें. So you want your stuff to be sold. So जो भी चीज हमें बेचनी है, अगर हमें हमारा घर भी बेचना है, you can put the papers there. So this is the most instability wala portion. Now the colors. So northeast का color क्या हो गया? Light blue. North का भी color blue है because it's a water element का color है blue. Northeast का भी blue है. East का white और blue, और maybe वो sun की direction है, you can have yellow color also there. Jupiter भी है, इसलिए you can have yellow color. So what I keep telling all my people are कि keep a off-white color in your house, you know. उसमें कोई आप mistake कर ही नहीं सकते off-white में. Not white, you know, white जिसमें blue का dash है, don't put that color because you know अग्निकोण में अगर आपने वो वाला white लगा दिया, it's not a very good thing. So have this off-white color scheming. Maybe a wall you can decorate, or you have to have the right directions. Why? Because north जैसे water element है, आपका south और east वाला जो portion है वो fire element आ गया. East तो फिर आपने अगर उस जगह blue color लगा दिया fire की जगह, so आप अपने अंदर की fire को literally बुझा देते हो. You try to extinguish the fire that is burning, and with the fire energy you tend to earn money. So southeast zone भी पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा zone है. Very good zone to earn money because from here हमारा किचन क्या होता है? पेट के खाने के लिए ही हम जीते हैं ना, खाने के लिए ही हम पैसा कमाते हैं, इसलिए ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So you have to really have a good southeast zone to have money in your life. So इसके कलर्स क्या हो गए? ऑरेंज हो गया, पिंक, all the red का जो शेड है. Then northwest area is related to air, so white. वेस्ट डायरेक्शन एक और प्लैनेट की होती है, वो है शनि देव की. सो वहां पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए. तो देयर आर पीपल हु डू रेकमेंड कि यू कैन हैव ब्लैक कलर, बट आई डोंट रेकमेंड ब्लैक कलर. यू कैन हैव ग्रे कलर, और यू कैन हैव ऑल द ब्लूज, ऑल द व्हाइट्स. देन साउथ वेस्ट अगेन यू कैन हैव दिस पीच. साउथ में अगेन अर्थ एलिमेंट है, तो यू कैन हैव दीज रेड्स, येलोज और ब्राउनिश पीचिश कलर्स. सो कलर्स का और डिटेल्ड बात हम उसमें करेंगे, ये एक थोड़ा ब्रॉडर है. इन द एंड आई विल टेल यू व्हाट कलर्स स्पेसिफिकली यू शुड अवॉइड इन अ पर्टिकुलर जोन. सो नाउ ये भी एक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है. सो ईस्ट इज डोमिनेटेड बाय सन, so you can have a white color because white, remember, white has all the colors in it. Then north is dominated by Mercury, green. So ये growth का भी color है, water element भी है, green color. क्यों? क्योंकि Mercury planet बुध का ये जगह है और वो growth. So plants you can have there, garden you can have there. Then south is dominated by Mars, so red color. Now understand one thing, आपको न्यूमरोलॉजी भी आना चाहिए if you are correcting your house on those fronts, and you should even know astrology. Now किसी का अगर मंगल बहुत ही
स्ट्रॉन्ग है, और उसके डेट ऑफ बर्थ में भी ना 2-3 बार 9 नंबर आ गया, 1999, 29th of September 1999 somebody is born. So 9 is what? Mars का एनर्जी है. और फिर आपने अपना साउथ एनर्जी, साउथ वेस्ट वाले जोन में रेड कलर भी लगा दिया. So too much of red energy. So this too much of red energy will create a lot of uneasiness and anxiety. So हमें moderation रखना है, balance रखना है हर चीज का. And west is dominated by Saturn, as I told you, so blue color. Northeast is dominated by Jupiter and Ketu also. Why Ketu? क्योंकि spirituality का planet है Ketu. And ये एक spiritual direction है, divine direction है. So you can have greens. Why green? Because वो north का आ रहा है. Green, yellow, even blue you can have, but I don't prefer blue color in your northeast zone. Yellow, yeah, off-white. These are the colors I prefer. Then southeast is dominated by Venus. So silverish white color you can have, Venus. But again, I prefer off-white here also. क्योंकि ये अग्नि कोण भी आ जाता है इधर. बट इसका प्लैनेट वीनस है. अब आप रिलेट, द पीपल हु हैव लर्न्ड एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी, कैन यू रिलेट? साउथ ईस्ट लेडीज का किचन, किसका होता है किचन? लेडीज का. वीनस किसका प्लैनेट है? लेडीज का. सो एनी प्रॉब्लम इन साउथ ईस्ट जोन, ऑल द वुमेन इन द फैमिली सफर बिकॉज वीनस इज ऑफ वुमेन. सो यू हैव टू चेक. Then comes the northwest. Northwest is the direction dominated by moon, white color. So you can do a remedy also वहाँ पे. अगर आपका northwest direction में, you can place a picture of moon there, exactly northwest direction में. क्योंकि as I told you, it is the instability का zone. तो अगर आपको depression type घर में किसी को feel हो रहा है, और you're feeling money बहुत ज़्यादा ही आपका losses में चला जाता है, you can treat this zone. Then comes the southwest, which is dominated by Rahu, so brown, wood color. So peach color, light beigeish color you can have. Now there are few remedies जिसका मैंने इन slides में लिया है, and few we will talk also. So sea salt is one of the biggest thing. So these days salt lamps are readily available in the markets. आप इन सी सॉल्ट या सॉल्ट लैम्प से आपके घर का वास्तु दोष हटा सकते हैं. यू कैन प्लेस इन सर्टेन एरियाज, सो दे हैव अ वेरी गुड पावर टू अब्सॉर्ब द नेगेटिविटी. सो एक रेमेडी इससे आप पोछा लगवाइए एवरी सैटरडे, और यू कैन पुट इन दीज कांच के बोल्स में ना, हर रूम में आप रख सकते हैं. या एक एलम फिटकरी भी आता है जो मैंने प्रोस्पेरिटी क्लास में बोला, उसका भी एक बड़ा सा पीस यू कैन पुट इन ऑल योर रूम्स, सो इट विल टेक अवे द नेगेटिविटी. देन मिरर्स. मिरर्स का भी मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का. सो लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड 25 years ago, टीवी कैसा होता था? उस समय टीवी मिरर टाइप्स होता था. इट यूज्ड टू रिफ्लेक्ट. टुडे तो वी हैव दीज LCDs एंड LEDs, उनमें इतना रिफ्लेक्शन नहीं है. तो मैंने मेरी लाइफ में देखा है, जैसे ही हम टीवी रोटेट करते हैं हमारे घर का, और वी यूज्ड टू हैव दीज प्रॉब्लम्स. सो इवन दो आई experienced Yeah, thank you, Asta, for answering that. So even though I experienced that 25 years ago, but you know, आप life में easy हो जाते हो, आप भूल जाते हो certain things. So when we were redoing our house, I had this beautiful mirror. My brother-in-law had gifted me. So I placed it on a particular wall. क्योंकि उस wall पे वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो unknowingly मैंने उस वॉल पे लगा दिया. You won't believe. Of course, I was going through my साढ़े साथी also in those days. तो मैंने वो वहां पे लगा दिया. Within 2-3 months, I fell down. I broke my tailbone. Yet I did not know.
फिर एक दिन वैसे ही बैठे बैठे आई वाज गोइंग थ्रू माय वास्तु नोट्स and suddenly I remembered I had placed my mirror in the south direction on the southern wall. So ये तो मेरा इतना मिरर्स का तो बहुत ही मैंने लाइफ में, अभी मेरे फ्रेंड का भी आपके साथ शेयर किया. So mirrors have again and again they have been telling me, you know, कि don't take them lightly. So where should you place mirror in your house? On the north wall, facing towards south. Okay? Because what happens, mirror has this capability to repel the energy. तो जब साउथ में लगा दिया तो आपने नॉर्थ की एनर्जी को रिपेल कर दिया, एंड यू देन यू अट्रैक्ट नेगेटिवनेस इन योर लाइफ. सो नॉर्थ की वॉल पे लगाएं या ईस्ट की वॉल पे लगाएं. यूजुअली मिरर्स, डोंट बाय मिरर्स ऐसे ही आप नहीं खरीदें, बिकॉज यू नो दीज मिरर्स आर ऑलवेज enhancing things in our life. So even though you put this on your north wall, yet you're not sure what it is enhancing in your house. उसके सामने क्या चीज है, you know. So आप बिना बात मिरर्स ना खरीद के घर में लगाएं. Go to a vastu consultant, उसका पूरा लेके ही लगाएं, because 3 times in my life, knowing everything I have suffered. And broken mirrors are big no-no because they create disturbance in life, in relationships. So ये भी आप लोगों को पता होगा, बेडरूम में भी हमें मिरर नहीं रखना है. अगर आप मिरर रखते हैं तो मेक श्योर आपका बेड उससे इनहैंस नहीं होता है. ओके. Then there are things, there is this बगुआ mirror जिससे हम ट्रीट करते हैं. अगर आपका टी जोन पे घर है या राइट डायरेक्शन में, लाइक साउथ ईस्ट फेसिंग आपका घर हो गया, तो वी ट्रीट द हाउसेस विद दीज मिरर. देन कपूर, कैम्फर जो ये होता है, इसको भी इफ यू बर्न इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर हाउस, it's also a very good thing to remove negativity from your house. So you can do this remedy, it's very good. Then एक और चीज है, एक चीज होती है पिरामिड्स, और एक पिरामिड्स होता है, एक होता है यंत्र. डिफरेंट तरह के यंत्र बनते हैं. नाउ यंत्र क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और जो वास्तु क्या है वो भी डायरेक्शंस के हिसाब से ही चूज होता है. सो यंत्रों में भी बहुत पावर है, बट उसको समझने वाला राइट पर्सन चाहिए. सो इफ यू हैव प्रॉब्लम्स इन पर्टिकुलर जोन्स ऑफ योर हाउस, यू कैन कंसल्ट योर वास्तु पर्सन. ही कैन गिव यू सर्टन यंत्र जो आप वहां पे प्लेस करें, तो उस जगह को कुछ यंत्र एक्टिवेट करते हैं, एंड देन यू कैन हैव दोज एनर्जीज. पिरामिड्स ऑल्सो, पिरामिड्स क्या है, ग्रोथ के सिंबल्स है. So again you can put them in certain corners. So मेरे father बहुत वास्तु remedies करते हैं. He uses these pyramids for all those builders in Delhi ना, तो बहुत ये भी हमारी tried and tested remedy है. Then wind chimes, you all are aware of wind chimes. The sound is very healing thing in our life. Then sound ही अगर हमने ले लिया तो खुशबू भी बहुत impact होता है. The fragrance is also very important in our life, you know. उसका भी बात करते हैं. Then horseshoe nail जो आता है, घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं, उसको U shape में हमें हमारी एंट्रेंस पे लगाना है. So वो इतना proficient है horseshoe nail कि it attracts the goodness and repels the bad things. So if you put in ऐसा U अगर आपने लगा दिया तो वो सारी चीजें वो फ्लो डाउन कर जाती है, अपॉर्चुनिटीज, एंड सारा नेगेटिविटी भी घर में आने लगती है. तो जस्ट बी केयरफुल, इट गेट्स लॉट ऑफ गुड लक इन योर लाइफ. देन स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां. अब एक चीज आप याद रखना, जो हमारे घर में विंडोज डोर्स जो होते हैं वो इवन नंबर्स में होने चाहिए. बट अगेन डोंट गेट पैरानॉइड. अगर आपके अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तो गुड, डोंट बॉदर योरसेल्फ. बट अगर आपकी स्टेयरकेस आपका नॉर्थ या ईस्ट जोन में है, वो सही नहीं है. साउथ वेस्ट में होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए.
नहीं है तो we can do remedies for that. Then as I told you, keep your northeast clutter free, because you know cosmic energies, gods की energies, वो सब वहीं से आती है. एंड अगर हम वास्तु पुरुष की जब बात करेंगे, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है. So if there is a clutter, then there's a clutter in our mind as well. So we have to take care of this direction also. Then plants से भी बहुत सारी रेमेडीज होती है, अभी आपको बताऊंगी मैं. Then copper wires से भी होती है. वो भी you have to take the help of a वास्तु consultant and get your done. क्योंकि जैसे नॉर्थ वेस्ट फेसिंग किसी का घर हो गया, अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा जोन है? इनस्टेबिलिटी का जोन है. सो द ओनर विल ईदर नॉट स्टे देयर, और गॉड फॉरबिडन उसको हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकते हैं. अगेन दिस आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ. we went for time being into a rented house. वो नॉर्थ वेस्ट जोन था, और हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ हमारे साथ नहीं, जो ओनर था उस घर का, उसके साथ. So yantras, as I told you, they remove the vastu dosh. So these were few things. Now we will talk. So now I have given you all the directions, unke zones, unke colors. Now what happens? Money क्या है? एक मनी है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है. एक मनी है जो साउथ ईस्ट जोन में आपका वर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है. देन द अदर जोन इज योर साउथ डायरेक्शन, जो अक्यूमुलेशन, स्टेबिलिटी, वहां पे हम मनी को स्टोर कर सकते हैं. देन वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो, वो भी अपॉर्चुनिटीज लाता है, क्योंकि एक जगह सन की एनर्जी है, एक जगह मून की एनर्जी है वेस्ट में. सो वहां से भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. सो मनी इज एवरीवेयर इन द हाउस. जैसे कि लक्ष्मी जी, प्रोस्पेरिटी क्लास में मैंने बात की थी, लक्ष्मी जी हर दिशा में है. अष्ट लक्ष्मी होती हैं, 8 दिशाओं को कवर करती है वो, ऑल द 8 डायरेक्शंस. सो आपको जो भी जोन में यू आर सफरिंग इन एनी ऑफ द जोन्स, यू ट्राई टू डू रेमेडी अकॉर्डिंग टू दैट जोन. डोंट गेट पैरानॉइड की सारी चीजें हमें सही करनी है. डोंट. आपको आप डॉक्टर के पास हर महीने नहीं जाते ना, आपको प्रॉब्लम आती है तभी जाते. बट यू फॉलो अ गुड डाइट, यू फॉलो फिजिकल एक्सरसाइजेस. सो सेम वे हमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए कि दीज आर डायरेक्शंस. सो यू हैव योर बेडरूम इन साउथ ईस्ट. सो साउथ ईस्ट में आप क्या कर सकते हैं? अब साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, बिकॉज इट्स अ फायर का जोन, सो आप वहां पे क्या करें ऐसा? आर यू फेसिंग प्रॉब्लम्स? आर यू फेसिंग? First question is, are you facing problems? Then the other questions come. But just give me a few seconds. I will take the remedies in the end. I will definitely guide you, don't worry. But let us complete the session before that. So now, एक चीज और हमेशा याद रखें आप, कि जब भी आपका घर में, like if you are studying, if you are doing anything, या you have your office, you have to have a wall behind you. Wall क्या इंडिकेटर होता है? Wall is a support. So अगर आप आपके ऑफिस में ऐसे प्लेस्ड है कि like you have to face north or east, and आपका पीछे दरवाजा आ जाता है, it brings in lot of difficulties, lot of restlessness, problems. So always have your chair beside a wall. ये बहुत जरूरी है. तो सेम वे हमारा बेड जो है उसको हमको साउथ डायरेक्शन में रखना है. हमारा हेड रेस्ट, हमारा हेड शुड बी इन द सदर्न पार्ट ऑफ योर रूम, एंड देयर शुड बी अ वॉल बिहाइंड इट, ओके, टू गिव स्टेबिलिटी. नो डोर्स, ना सामने डोर होना चाहिए, बेड के बिल्कुल सामने भी डोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी कम्स एंड इट इफेक्ट्स योर हेल्थ.
सो यू कैन हैव, जैसे ये गेट है तो आपका बेड अगर यहाँ तक है इट्स ओके, बट एग्जैक्टली गेट के सामने बेड है, इट्स नॉट राइट, बिकॉज द एनर्जी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. क्लोज विंडो, या तो यू कैन पुट अ कर्टन, हैवी कर्टन, सो दैट और उसको क्लोजर मिल जाए. दिस वॉज वन थिंग. देन वन थिंग मोर, जो भी आर्टिकल्स हम घर में रखते हैं, बी इट द पॉट्स, फ्लावर पॉट्स और आर बेड्स और आर almirahs, उन सब के नीचे छोटा सा ना उसको अर्थ से ऊपर रखें, अपलिफ्ट इट. Why? Because energy flow होना चाहिए. हर रोज तो we are not moving our furniture in home ना. So you should have these raised and slightly away from the wall. There should be energy ka circulation, because Vastu is एक तो about directions, other thing is flow of energy. घर में flow of energy बहुत जरूरी है. Flow of energy is required for money, flow of energy is required for relationships. So this is one thing. Now जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, they don't have this, one by one I'm going to every aspect of our life. ठीक है? Now it's the time to go on every aspect of our life. So if your children are not studying, so you can place their study table in a way that they are facing east or they are facing north. Okay? And on the study table have to be very clean. Then there should not be books, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का जो study table है, उसका जो drawer है, we put our magazines and we put many other things, कभी कभी कुछ भी, anything you put, तो वो एनर्जी को डिस्टर्ब करता है बच्चे की. Again somebody has unmuted. So बच्चों के लिए पढ़ने का मेन जगह है नॉर्थ एंड ईस्ट. अब एक चीज आप हमेशा याद रखें, नॉर्थ इज द डायरेक्शन जहां से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुबेर देव आ रहे हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ईस्ट इज द डायरेक्शन जहां से डिवाइन एनर्जी आ रही है, भगवानों की एनर्जी आ रही है. तो अब आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड. ओके, सो बच्चों के लिए नॉर्थ ईस्ट जोन इज वेरी गुड. उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेबल पे आप उनके सरस्वती माँ की एक पिक्चर चाहे पिक्चर लगाएं, चाहे मूर्ति रखें. अब सरस्वती माँ क्या होता है, सरस्वती माँ के अगर आप सिंबल्स को ले, उनके हाथ में वीणा होती है, दैट इज स्किल्स. उनके हाथ में किताब होती है, वेद होते हैं, दैट इज नॉलेज. सो देर आर एवरीथिंग जो भगवान ने या वेदों ने बनाई है, उसका कोई ना कोई रेलेवेंस जरूर है. So you have to have a सरस्वती माँ की पिक्चर या सरस्वती माँ. अब सरस्वती माँ व्हाइट कपड़ों में रहती है, वो साफ सुथरा उनको पसंद है. So keep the thing clutter free. Then comes the southeast zone. Then एक और zone आता है, northeast zone. That northeast is for health issues also. तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो देखें आप, या तो आपने क्लटर रख रखा है आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपने स्टोर बना रखा है, जैसा कि मैंने प्रॉस्पेरिटी सेशन में बताया था, आपने अगर वहां पे अपना झाड़ू या ब्रूम रख रखा है, इट्स नॉट रेकमेंडेबल. सो रेकमेंडेड, you have to keep this clean, this zone clutter free and clean for your good health. Then comes the southeast. अब साउथ ईस्ट क्या है, हमारा किचन का जोन है, अग्नि कोण है, लेडीज का जोन है. तो अगर वहां पे किसी ने अपना वाटर टैंक बना दिया, तो आपने क्या करा, अग्नि वाली जगह में पानी डाल दिया उसके ऊपर, तो कहाँ से वाइटैलिटी आएगी, कहाँ से पावर आएगी कुछ करने की. नाउ किचन के लिए बिग नो क्या डायरेक्शंस है, साउथ वेस्ट, बिकॉज वो स्टेबिलिटी और यम की दिशा है, तो वहां पे किचन नहीं होना चाहिए. एंड नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, बिकॉज नॉर्थ इज द वाटर एलिमेंट है, वो वहां पे आप अग्नि रख ही नहीं सकते. सो यू कैन हैव इन साउथ ईस्ट पोर्शन में आपका हो सकता है किचन. सेकंड क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है. बट नॉर्थ वेस्ट जब किचन हमारा था रेंटेड एकोमोडेशन में,
बहुत सारे गेस्ट, बी रेडी फॉर लॉट ऑफ गेस्ट, बिकॉज यू नो इंस्टेबिलिटी का है तो खूब सारे गेस्ट आते रहते हैं आपके घर में. इन अ वे अच्छा है बिकॉज यू आर एबल टू, बहुत सारे लोगों को आप आदर सत्कार कर सकते हैं, करते हैं तो अच्छी बात है. बट या इट ट्राइज टू गेट, सो साउथ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन है. देन कम्स द साउथ. साउथ डायरेक्शन में हमारा मेनली जो बेडरूम है वो साउथ में होना चाहिए, बिकॉज साउथ वेस्ट में जब हम मूव करने लगते हैं वी डोंट नो कब हम साउथ वेस्ट में पहुंच जाते हैं, डिस्पोजल वाले एरिया में. और डिस्पोजल वाला तो अभी जहां भी आपका बेडरूम है, इफ यू आर सफरिंग प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, देन यू कैन चेक योर डायरेक्शन. सेंटर में जाके आप देख सकते हैं. देन टू कीप हार्मोनियस रिलेशनशिप, on the southern wall you should have your family portrait. उससे पूरा relationships अच्छे रहते हैं. So you can have your family portrait, आपके holidays के pictures, all the fun events. ये entertainment, relaxation का भी zone होता है आपका. So वहाँ पे आप वो सारी memories की pictures लगा सकते हैं. So when you see all those memories, you feel good. And yes, सारे family का अगर portrait होता है तो आप लोगों में हार्मनी भी रहती है रिलेशनशिप में. अगेन देयर आर मेनी थिंग्स, कपल है तो यू कैन प्लेस टू, वो रख सकते हैं आप, लव बर्ड्स रख सकते हैं. इन साउथ सदर्न पार्ट ऑफ योर एरिया यू कैन हैव रेड कलर, तो रेड फ्लावर्स आप रख सकते हैं, पेंटिंग्स रख सकते हैं. नाउ पेंटिंग्स की रेमेडीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. क्यों? See, everything is our subconscious mind. Now there is a painting, okay? Now which painting will I choose? Let me see. So there is a painting जो remedy में बता रहे हैं लोग कि आप ना एक mountain की painting लगा दीजिए. So mountain depicts क्या? Height. But अब अगर मेरा ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस रहा कि मैं पहाड़ से गिरी हूँ, तो मैं जब भी उस माउंटेन को देखूंगी मुझे डर लगेगा, फर्स्ट पॉइंट. या मुझे वो माउंटेन कैसा लगेगा? अ हीप ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हाउ टू सी द फ्यूचर. सो यू नो पेंटिंग्स भी हर पर्सन के लिए अलग अलग काम करती है. किसी के लिए लाइक लायन, तो अभी बहुत सारे लोग ना लायन की पिक्चर घर में लगा देते. तो ओपन जो मुंह खुला वाला लायन है वो खराब है, बिकॉज इट्स अ एनगल्फिंग थिंग. बट इफ यू हैव अ क्लोज माउथ का लायन, तो लायन क्या है? करेज है, स्ट्रेंथ है. तो अगर आपके बच्चे या एनीबॉडी हु इज फीलिंग लो ऐसा फील करते हैं तो वो लगा सकते हैं. बट आई डोंट रेकमेंड, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं हर घर में, एंड दे टेंड टू गेट स्कैर्ड ऑफ दिस लायन. सो यू हैव टू सी. तो पेंटिंग्स का रेमेडीज करने से पहले आप देखें आपको कैसा फील होता है कोई भी पेंटिंग को देख के. फिर जैसा कि मैंने आपको कलर्स बताए, सो अभी जैसे आपने एक वाटरफॉल की पिक्चर लगा दी इन योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इट्स नॉट राइट, रादर इट्स रॉन्ग. गलती हो गई है बड़ी सारी, क्योंकि अग्नि में आपने पानी डाल दिया. बट वही आपने अगर नॉर्थ जोन में लगा दी, सो देन आपका वाटरफॉल की तरह आपके घर में पैसा आएगा. सो देयर इज नॉर्थ जोन का एक रेमेडी क्या है? यू कैन हैव अ फाउंटेन वहां पे. जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज एसेंशियल. सो इफ यू पुट अ जो हम पॉट रखते हैं पानी से भर के वहां पे, तो उसको चेंज करना है. सो इट्स बेटर यू कैन हैव दैट फाउंटेन. आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, तो लॉर्ड बुद्धा के भी बहुत अच्छे आते हैं, तो यू कैन कीप लॉर्ड बुद्धा का वहां पे, बिकॉज इट्स अ पीस जोन. एंड वाटर जो गिर रहा है वो पैसा आपका वैसे वैसे आता रहेगा. देन ईस्ट साइड का क्या रेमेडी है? रेड कलर, और यू कैन हैव प्लांट्स. सो साउथ ईस्ट में आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि इट इज अ जोन जहां से पैसा आता है. तो जब तक मैंने वास्तु नहीं पढ़ा था मुझे क्या लग रहा था, साउथ ईस्ट अग्नि है, एंड आई कुड नॉट रिलेट मच. बट देन एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम समझे तो अग्नि हमें जरूरी चाहिए लाइफ में, to have that vitality, then only you can earn money. So money earn करने का ये zone south east है.
वहां पे आप मनी प्लांट लगा सकते हैं. मनी प्लांट आप नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं. यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. Then you can have bamboo plants. Then third thing was, एक you should always have tulsi plant at your house. So उसको नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको लगाना है, तुलसी माँ को, क्योंकि तुलसी क्या है, गॉडेस लक्ष्मी का स्वरूप है. तो आपको तुलसी भी घर में होनी चाहिए, बट यू शुड प्रे ऑल्सो. ओके, सो तुलसी, मनी प्लांट, बैम्बू और मे बी पाम ट्रीज, ये सब साउथ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के रेमेडीज है, क्योंकि ग्रीन कलर है, ग्रोथ का कलर है, सो इट विल एनहांस योर ग्रोथ ऑल्सो. देन कम्स द साउथ डायरेक्शन. अभी साउथ डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अपने घर की जो छत है उस पे आप रेड फ्लैग लगा सकते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ फेम. और फ्लैग क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ फेम. झंडा क्या होता है, झंडा हमारी प्रसिद्धि का कारक होता है. सो रेड कलर का झंडा लगाएं आप साउथ डायरेक्शन में. ईस्ट डायरेक्शन में आप एक और चीज कर सकते हैं, कॉपर का सन लगा सकते हैं. तो अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं मे बी, so you can put a copper surya there, or maybe you have some work government related और वो solve नहीं हो रहा आपका, तो भी आप ये सूर्य लगाएं कॉपर का वहां पे. एंड कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा तो भी आप लगा सकते हैं, बिकॉज ईस्ट जोन को वो एनहांस कर देगा. सो जैसे ही ईस्ट जोन एनहांस हो गया, यू विल हैव मोर एनर्जी फ्रॉम लॉर्ड सूर्य, फ्रॉम गॉड्स, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और आएगी. देन कम्स द वेस्ट जोन. वेस्ट जोन किसका है, शनि का हमारा है, और स्टेबिलिटी का भी है, लोहे का भी है. सो यू कैन हैव योर आयरन एल्मिराज. या उससे पहले धन का, कुबेर का स्थान नॉर्थ है, ठीक है. तो नॉर्थ क्या है, मनी का, वेल्थ का. नाउ व्हाट मिस्टेक पीपल डू, दे पुट देयर तिजोरी इन नॉर्थ. आप अपना मनी वाला पोर्शन नॉर्थ में रख देते हैं, but what they do, they put it on against the north wall facing the south. अब वो साउथ की जो एनर्जी लाएगा, वो एल्मेरा में क्या होगा, जब भी आप डोर खोलेंगे इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स योर साउथ डायरेक्शन. साउथ क्या है, यम की दिशा है, और नॉर्थ को आपने ब्लॉक कर दिया है. सो आप, अगर आपको फिजिबल है तो आपके नदन पोर्शन में आप रखें एल्मेरा और तिजोरी, बट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. So the opportunities, the good energies come through that tijori. Whenever the door is opened, आपके अंदर वो सारी एनर्जी आए. अब आप ये एल्मेरा अपनी साउथ जोन में भी रख सकते हैं, क्योंकि साउथ इज द स्टेबिलिटी का जोन, बट देयर ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ. सो इवन आप अपने घर में पर्स रखते हैं अपना, तो पर्स का भी आप कैसे रखें, फेसिंग नॉर्थ. जो मुंह होता है पर्स का, ओपन एरिया, दैट शुड बी फेसिंग नॉर्थ. So this is very important. People tend to do this mistake कि वो लोग जैसे साउथ पोर्शन में आप अपना अलमारा रखें तो वो नॉर्थ की वॉल पे रख देंगे. This is not right. You have to put your almira, your tijori in a way that is, it's opening towards north, because north is opportunity, north is Kuber Dev, north is money. Then comes the northwest zone. वहां का रेमेडी मैंने बताया ही है, आप वहां पे एक चंद्रमा लगा सकते हैं. देन हमारा बाथरूम या वो कौन सा जोन है, तो वो साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट. इसका भी बड़ा टेक्निकल चीज है. सो इसके लिए आप बाथरूम्स के लिए मेन चीज आप क्या करें, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल अपना बाथरूम ना रखें अंडर एनी सिचुएशन. अदरवाइज कीप योर बाथरूम्स क्लोज्ड, and the lid of your pot should be down, because you know the money goes into drain. एक आपने exactly proverb का मुझे नहीं पता, ये एक मुहावरा है, पैसा गया उसमें. So अगर आपका वो pot का lid open रहेगा, your money gets drained. So put the lid down and keep your bathroom door shut, because bathroom में क्या होता है, negative energy होती है, dirty energy होती है. And you can put a plant also in your bathroom. You can put fitkari, you can put sea salt, because these have negative energies को ये absorb करने की इनमें tendency है.
So if you have your bathroom in northeast, you should not use it. ऐसा तो है नहीं आजकल के घर में एक ही बाथरूम होता है. वी हैव बाथरूम्स इन अदर डायरेक्शन. इस वाले को बंद कर दीजिए. कुछ भी और नहीं कर सकते. जस्ट क्लोज दिस फ्रॉम योर हाउस. क्लोज दिस. एंड देन हमारा प्राणिक फेंशुई में भी काफी सारा रेमेडीज होता है मिरर के थ्रू, विच वी कैन डू. वी कैन पुट सर्टन मिरर्स सो दैट वो घर में वो एनर्जी में आए. एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे आपका बेड है वो कभी भी जो बाथरूम की वॉल है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज बाथरूम की डर्टी एनर्जी विल कम इनटू यू. और योर किचन शुड ऑल्सो नॉट हैव. सो बाय द वे बाथरूम किचन साथ हो गए तो एटलीस्ट वो स्लैब वहां मत रखें. वेयर यू आर कुकिंग योर फूड, डोंट हैव दैट स्लैब देयर. Whenever you're cooking food, you have to face east or maybe north. South यम की दिशा में देख के खाना बनाओगे तो फिर जो खाना खाएंगे you can understand. Then किचन में वाटर भी होता है, फायर भी होता है. तो you have to be very careful how to balance these two energies. They should not be together. Because अग्नि में पानी आते ही खत्म. और पानी के ऊपर तो खैर अग्नि कुछ नहीं करती, बट ये गलत हो जाएगा. सो किचन को साउथ ईस्ट जोन में रख के जो नॉर्थ ईस्ट उस जगह का एक आपने घर का डायरेक्शन निकाला घर के बीच में से, देन एवरी रूम ऑल्सो यू शुड सी. सो किचन में जाके नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में यू कैन हैव योर ड्रिंकिंग वाटर. साउथ वेस्ट में यू कैन हैव योर यूटेंसिल्स वाला पोर्शन. Southeast में you can have your electrical appliances. Northwest में you can have your refrigerator. But अगर ये सारी चीजें नहीं हो, it's not possible. तो if you are suffering, then we can do remedies. If everything is going smooth, then don't touch. Don't bother yourself. Then so this is how the directions at our place इफेक्ट आवर लाइफ. कोई भी जोन. तो अब आपके पास कोई आता है, सो हम मनी को ही ले, बिकॉज मनी इज वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ आवर लाइफ. सो जैसे अभी कोई काउंसलर है, like I am one person, I'm earning money through teaching, through astrology, then I will focus on my northeast zone. But then there is another person जिसका business है, तो उसका zone हो गया साउथ ईस्ट मनी का, बिकॉज मनी, वाइटैलिटी, एनर्जी, वैसा वाला जोन. देन समबडी इज इनटू शेयर मार्केट्स, तो नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि शेयर्स आर अप एंड डाउन, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए ना हमें शेयर्स में, ग्रोथ ऊपर नीचे. सो नॉर्थ इज ग्रोथ ऑल्सो. नॉर्थ वेस्ट जोन क्या हो गया, वैसा वाला जोन हो गया. तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में यू कैन हैव योर दिस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आपका प्रोफेशन क्या है. अगर आप डॉक्टर है तो भी नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज वो भी आपका हेल्थ का जोन है. अगेन ये जब हम वो एडवांस वास्तु क्लास बात करेंगे तो वास्तु पुरुष का हम पूरा बॉडी के हिसाब से वी टेल यू द जोन्स. सो देर आर मेनी फैक्टर्स. सो डोंट गेट पैरानॉइड एंड डोंट गेट दिस कि हम सारे घर का बदल डालेंगे. आपको कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस जोन को चेक करें, आज वाले लेक्चर से एसोसिएट करें. So you can understand. Now जब आप ये दिशा समझ गए कि नॉर्थ वाटर जोन है, then east comes the air element, then comes the southeast fire, then comes the earth element, then comes the space element. तो जब ये सारा आपको पता चल गया, उनके कलर्स हमें पता ही है, फायर का क्या कलर होता है, अर्थ का क्या होता है, वुड होता है, मिट्टी होता है. अब वहां भी अगर आपने वाटर डाल दिया तो वो क्या हो गया, इफ यू पुट लॉट ऑफ वाटर इन अर्थ प्लेस तो कीचड़ हो जाएगा. सो यू शुड नॉट हैव अ ब्लू कलर देयर. सो ऐसे व्हेन यू अंडरस्टैंड द मेन फंडा ऑफ वास्तु ना, देन इट बिकम्स इजियर. सो कोई भी आर्टिफैक्ट्स खरीदें आप तो इन सबको सोच के खरीदें. ऑफ कोर्स जो मन को भाग गया वो तो बेस्ट ही होता है, बट देयर आर अदर पीपल लिविंग इन द फैमिली एज वेल. सो यू हैव टू सी व्हाटएवर यू आर बाइंग,
क्या वो उस एलिमेंट को, बिकॉज रिमेम्बर हर अगर डायरेक्शन दी गई है, अगर एलिमेंट्स दिया गया है तो उसका रेलेवेंस है. सो यू शुड नॉट फिजिट विद दीज एलिमेंट्स कि अग्नि की जगह पानी, पानी की जगह अग्नि. तो नॉर्थ ईस्ट में आपने किचन रख लिया तो आपका सारा अपॉर्चुनिटीज खत्म, अग्नि में जल गई सारी अपॉर्चुनिटीज, कुबेर देव, मनी. सो यू हैव टू बी केयरफुल. So, what to do if you have mirror in a bedroom? So, mirror को ऐसे रखें. Firstly, mirror को आपको north wall पे रखना है, so that the south वाला portion को वो रखे. अगर आपने south wall में रख दिया तो वो वैसे ही opportunities को हटा देगा. Then आपके bed facing ना रखें, bed के adjacent रख लें. This is your bed. You can have your dressing table here. You can have your dressing table there. एडजस्टेंट रख सकते हैं. और समवेयर की वो रिफ्लेक्शन ना आए. फिर भी नहीं पॉसिबल है, कवर द मिरर. व्हेनेवर यू आर ड्रेसिंग अप, रिमूव, ड्रेस अप, पुट द मिरर, पुट द कवर बैक. सो इफ मिरर इज इन साउथ, कवर इट. देयर इज नो रेमेडी, बिकॉज मिरर्स की को मैंने आपको बताया ही मेरी लाइफ में बहुत ही हादसे हुए हैं. सो मिरर इज वेरी, बिकॉज मिरर इज व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्टिंग, इनहैंसिंग थिंग. तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपना जो मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने मिरर लगा देते हैं. आपका जैसे लॉबी है, आपने एंटर किया, यू हैव दिस ड्राइंग रूम और लॉबी एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल मिरर प्लेस देयर राइट इन फ्रंट ऑफ योर डोर. अब क्या होगा, जितनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आ रही है उस मिरर ने सबको रिपेल कर दिया. And then you are not, फिर आप सोच रहे हो what happened, why I'm not successful. This is the reason. So हर चीज का एक डायरेक्शन है, हर चीज का एक काम है. You know, हर चीज, हम खाना एक जगह बनाते हैं. अब डाइनिंग टेबल, कई बार पेरेंट्स बच्चों को डाइनिंग टेबल पे पढ़ा रहे हैं कि भाई गो एंड सिट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड स्टडी. डू यू थिंक इट्स राइट? डाइनिंग टेबल हमारा खाना खाने की जगह है. आपकी स्टडी की जगह एक फिक्स्ड होती है. You have to study in a particular direction at a particular place. So बेड पे कई लोग खाना खाते हैं. It's not right. क्योंकि खाना भी क्या है, अग्नि है. बेड क्या है, आपका सोने की जगह है. Then food is kind of Lakshmi also. So don't try to do these things, you know, these. So in the group, I'll keep sharing these kind of remedies. Just give me a moment. Directions मैंने लिखी थी, which colors no for certain directions. I'll get the copy. So there is one more thing I want to tell people जो अपना घर बनाने वाले, you know, अपना घर, not the flats, घर. So आप अपना जो भी पर्सन आए, आपके पंडित, whatever, एक नाभि रेमेडी होती है. Now नाभि is what? नेवल. नेवल क्या होता है, हमारा ब्रह्म स्थान होता है घर का भी. और हम मदर के वूम में होते हैं, नेवल के थ्रू वी रिसीव फूड. तो कई सारी नेवल रेमेडीज नहीं आती, पुट दिस ऑयल ऑन योर नेवल. आपके होठ सूख रहे तो सरसों का तेल डाल दीजिए, आपके पिंपल्स हो रहे तो नीम का तेल लगाइए नेवल पे. इट वर्क्स. व्हाई? बिकॉज नेवल इज द मेन सेंटर जहां से हमें पहले फूड एंड न्यूट्रिशन मिल रहा था, सबसे पहले लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ मिलता है हमको. सो हमारा घर का जो नेवल एरिया होता है उसको हमें ट्रीट करना होता है. तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग योर कंस्ट्रक्शन डन, आप अपने पंडित से या अपना वास्तु पर्सन से बोलिए कि नाभि वाली रेमेडी करा दे. उसमें क्या होता है, दे टेक अ कॉपर प्लेट. सो ऑफ कोर्स इन द एडवांस क्लास वी विल डिस्कस, बट अभी आपको बताती हूँ. दे टेक अ कॉपर प्लेट, उसमें ना स्टोन्स डालते हैं. हर डायरेक्शन का एक स्टोन है. प्लैनेट मैंने बताया ये. तो जैसे अगर हम लें कि किसी का कोई बच्चे पढ़ रहे नहीं है, नॉर्थ जोन इज इफेक्टेड, वी कैन पुट अ गणेश जी मेड आउट ऑफ जेड, ग्रीन स्टोन वहां पे लगा सकते हैं.
सो वैसे ही हर जोन का स्टोन वो हर दिशा में भी डाल देते हैं, प्लस ये जो सेंटर ऑफ आपका घर है उसमें भी वो सारे स्टोन्स इन द कॉपर प्लेट. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर फर्स्ट, एंड कॉपर सूर्य का भी वो होता है. तो अर्थ में ऐसा कुछ करते हैं. वो रेमेडी आप जरूर कराएं. उससे क्या होगा, आपका लैंड का एक्टिवेशन हो जाएगा, क्योंकि यू डोंट नो वो लैंड कहाँ से है, क्या उस पर एक्टिविटीज हुई है. there are many things, so this remedy you should do जो लोग घर बनवाने वाले हैं. Yeah, now I was talking about, so ये जो वास्तु का सबसे पहले जो बिगिन हुई थी बात, ये टेम्पल्स की स्ट्रक्चर से बिगिन हुआ था. फिर वो टेम्पल्स को करते करते, घरों में करते करते, इट केम फॉर एवरीबॉडी. बट यू कैन अंडरस्टैंड, हर ज्योमेट्रिकल चीज का एक रेलेवेंस होता है. नाउ बिग नो नो आपको बता देती हूँ. सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग बिल्कुल भी, एज आई टोल्ड यू, ब्लू और डार्क ग्रीन, सो पेस्टल कलर्स भी आप घर में लगाएं तो बेटर ऑप्शन है. डोंट हैव दीज डार्क कलर्स. You can just decorate one wall if you want to for a darker thing, because you know हमें कई बार नई नॉलेज होती है और कई बार प्लैनेट्स, सबके प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करता है. आपने किसी का मंगल खराब है और वहां मंगल की एनर्जी डाल दी, डबल गड़बड़ हो गया. देन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डू नॉट अगेन हैव अ ब्लू कलर एंड इवन पिंक. तो क्या होता है, कई बार लोग ना बेडरूम्स में पिंक कलर करवा लेते हैं. ना पिंक इज, पहला तो अगर हम वास्तु को लें तो पिंक कलर अग्नि का कलर आ गया यहाँ पे. अगर हम प्राणिक हीलिंग में लें तो इट्स अ इमोशन का कलर. सो यू डोंट वांट टू गेट टू इमोशनल इन योर लाइफ, क्योंकि साउथ डायरेक्शन क्या है, स्टेबिलिटी की है. सो हैव दीज, अगेन यू कैन हैव अ off-white color or brownish peachish color. So don't have pink or blue color there. West zone में do not have red color or green color. Then northwest में do not have green color, and north में do not have red color. Northeast में do not have blue and green. Then south में I have told you. So now आकाश भी एक element है, that is our roof. So roof, we've always been having white color, or maybe you can, these days people do have these reds and I don't know what not colors they keep having, but I don't recommend. Keep it white, off white, or you can have a beading kind of on the roof, you know. काफी डेकोरेशन करा सकते हैं, बट मेन आप व्हाइट रखें. अगेन फ्लोरिंग में फिर वो मटेरियल हो जाता है. सो मार्बल कम्स, अब व्हाइट मार्बल घर में नहीं लगवाना चाहिए, बिकॉज मकबरों में लगता है व्हाइट मार्बल, बट ईच वन टू इटसेल्फ. सो यू कैन हैव वुडन, बिकॉज अर्थ है एलिमेंट, वुडन फ्लोरिंग अच्छा रहता है. And you can have pink marble, like, yeah, you can have these granites and जिसमें brownish tinge आ रहा है वैसे. Again, kitchen की slab को black कभी मत रखें. Brown granite रख ले वहाँ पे, green slab रख सकते हैं, but never keep it black. और क्या है, तो south east में big no is blue, north east में big no is red, southwest, northwest, green is a no color. Okay, so this is about colors. Then let me see what if I have not. So now आपने एक और चीज है, एक होता है वास्तु, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है न्यूमरोलॉजी. हमने सबके रेमेडीज किए या हमने ना किए सबके. हाँ, इन सब चीजों से ऊपर कौन है, भगवान. So you should have faith in that God, because if you pray to that God, आपने देखा कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के महाभारत में. उधर दुर्योधन ने पूरी सेना चूज कर ली थी. कृष्ण ने किसको चूज किया,
भगवान को चूज किया। फिर 5 घोड़े, 5 घोड़े थे, 7 नहीं थे, 5 क्या हो गए, 5 एलिमेंट्स। सो हमारे भगवत गीता में बहुत कमाल नॉलेज है, बहुत कमाल नॉलेज। अगेन भगवत गीता का ये जो युद्ध का होता है, कई लोग इसको अपने घर में पेंटिंग के रूप में रखते हैं। दिस जहाँ कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो वाली पेंटिंग बहुत सारे लोगों के घरों में होती है। आई डोंट रेकमेंड, बिकॉज वट एवर इट इज, ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण भगवान, बट वो युद्ध का जगह थी। डू यू वॉन्ट वॉर एट योर प्लेस? सो ईच वन टू इटसेल्फ, इफ यू लाइक इट इट्स ओके, बट बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, वास्तु शास्त्री, हमें बहुत ब्यूटीफुल एक पेंटिंग मिली थी, वेरी एक्सपेंसिव, बट वी हैड टू गिव इट बैक बिकॉज वी कैन नॉट हैव दिस. So now so there is one more thing, keep everything properly, and specifically आपके ornaments, आपका money, ये सब चीजें ढंग से रखें, क्योंकि ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है. और लक्ष्मी को अगर आप जैसे पार्टी से आए एंड यू जस्ट थ्रो अवे हियर एंड देयर योर क्लोथ्स एंड योर ज्वेलरी एंड देन यू गो ऑफ टू स्लीप, इट्स गोइंग टू, रात को सबसे ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड इफेक्टिव हो जाता है. It will affect your subconscious mind. It will affect the energy of your home. So just be careful. Put your things in a neat and tidy manner. You know, अगर कुछ वायर भी है तो उसको ऐसे क्रम्बल करके नहीं गिराना है, उसको अच्छे से रोल करके put it nicely. When you do these little things in life, I have experienced this. आपके लाइफ में बहुत अच्छा फीलिंग आता है. Very nice things you feel. Then natural light is very important घर में. हर रोज मॉर्निंग में ओपन ऑल योर विंडोज, ऑल योर डोर्स. साउथ वाले वेस्ट वाले को बंद रखें, नॉर्थ और ईस्ट वाले सारे खोलें. सो द नेचुरल लाइट जितना घर में आएगा. नो, मिरर इन वेस्ट वॉल इज नॉट ओके. व्हाई? बिकॉज इट विल रिपेल द ईस्ट एनर्जी. सो जितनी नेचुरल लाइट आएगी, लाइट क्या करती है? लाइट अंधेरे को मिटाती है. अंधेरा क्या है? नेगेटिविटी इन लाइफ. So the light removes all the negativity in our life. Sunlight. And keep your house litted also. So अगर there are places, कोई zones ऐसे हो गए कि आपका वहाँ पे light आ ही नहीं रही है, तो put a artificial light there. Keep your house litted. Then salt lamps I've told you. Then there is one more thing, incense sticks. Incense sticks में भी क्या होता है? एक तो fragrance होती है, वो भी जैसे सैंडलवुड है, इट रिमूव्स द नेगेटिविटी. तो सारी चीजें प्राणिक हीलिंग भी सीखें. हमने नहा लिया, हमने घर में झाड़ू पोछा करवा दिया, डू यू थिंक हमारा घर क्लीन हो गया? नहीं, बिकॉज द एनर्जीज आर देयर, डर्टी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज. हम टीवी देखते हैं, न्यूज की एनर्जी. हम बात करते हैं, वी टेंड टू क्रिटिसाइज पीपल. समटाइम्स वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ह्यूमंस. We criticize. There are many negative energies. उन सबको क्लीन करने का तरीका बताते हैं प्राणिक हीलिंग में. तो आपकी बॉडी में भी जो एनर्जीज नेगेटिव है, उसको भी क्लीन करना प्राणिक हीलिंग सिखाता है. आपके घर की एनर्जी भी सिखाता है. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्राणिक हीलिंग सीखें. आई हैव सीन माई लाइफ 360 डिग्री चेंज होते हुए, डिस्पाइट आई वाज अ एस्ट्रोलॉजर, डिस्पाइट आई वाज अ वास्तु पर्सन. यट प्राणिक हीलिंग ने भी बहुत कमाल किया लाइफ में. देन मेडिसिन्स का भी जोन होता है. मेडिसिन्स भी हमें किचन में नहीं रखनी चाहिए. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द जोन. क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं? मेडिसिन से हम चाह रहे हैं कि वो स्टेबल ना रहे घर में मेडिसिन. सो नॉर्थ वेस्ट में रखें, फटाफट बीमारी खत्म, दवाई गायब. So, you know, after the knowledge of the directions and all this, you can always correlate कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. Now there is one more thing, doormats. Doormats का भी बहुत रहता है. घर के बिगनिंग में we keep doormat. So the colors are very important. क्योंकि आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है, आपने रेड डोरमैट लगा दिया. और रेड वैसे भी वाइटैलिटी का
हनुमान जी का कलर है, आपने उसको पैरों में लगा दिया, नो. यूज ब्राउन्स और पेस्टल कलर्स और मड कलर्स, धरती वाले जो कलर्स हैं वो रखें आप as a doormat. Keep it simple. Don't put these symbols, namaskar ki mudra and some symbols in that. भगवानों के please, हमारे पांव पहुंचते हैं हम. Namaskar is a mudra which has all the 5 elements here. So we should not, because in a way we are वाइपिंग आवर फीट ओवर आवर 5 एलिमेंट्स. वही आपने तो वास्तु की गड़बड़ कर दी. एक और रेमेडी है, आपके फुट मैट जो बिगनिंग में आपके घर के बाहर है, उसके नीचे आप थोड़ा सा ना मसलिन क्लॉथ में पाउडर्ड फिटकरी रख सकते हैं, सो दैट जो बाहर से लोग आते हैं, समटाइम्स वी डोंट नो कौन कैसी एनर्जी लेके आ रहा है, या हम भी कहीं गए हैं, मे बी शमशान भूमि में गए, किसी की डेथ हो गई है एंड यू आर कमिंग बैक. So when you wipe your feet on your doormat, वो फिटकरी अगर होगी ना, it will remove all the negativity. So you can come inside with positive feet. So हर चीज, डोरमैट का भी कलर होता है, कर्टन्स. सो अगर आपने बाय द वे कोई गलत दूसरा कलर करा रखा है आपके रूम में, से अबाउट आपका पिंक है रूम में, तो देन यू कैन पुट कर्टन्स रिलेटेड टू दैट डायरेक्शन. उस कलर के कर्टन्स लगा दीजिए. उस रूम में वो बेडशीट्स लगा दीजिए, कुशन्स लगा दीजिए, पेंटिंग लगा दीजिए. एक और बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं एंड इफ दे आर नॉट एबल टू बाय हाउस, आप अपने वेस्ट जोन, क्योंकि वेस्ट जोन एज आई टोल्ड यू इट्स अपॉर्चुनिटी का एक सेकेंड जोन है, वहां पे एक विलेज की फोटो लगाइए. विलेज, आपको फटाफट घर खरीद लोगे आप. सो इसके पीछे का लॉजिक एडवांस क्लास में बात करेंगे, अभी तो ये रेमेडी है. Then the foot mat you can have in a coir thing. क्योंकि coir क्या है, wood element है और earth का वो है, इसलिए आप coir का रखें foot mat. Don't keep these Saturn foot mats or anything like that. So we have to use our mind and use things. Then what? So I think this is for today. So that's about. So there are many remedies. There is a fountain का remedy. Turtle. अब turtle को कहाँ रखना है आपको? Turtle क्या है? पानी का जीव है, तो उसको आप रखिए नॉर्थ जोन में. नॉर्थ जोन में कैसे कि उसकी टेल तो नॉर्थ को फेस कर रही है और वो अंदर लेके आ रहा है अपॉर्चुनिटीज. ओके. जो समुद्र मंथन हुआ था ना, वो भी कुर्म टर्टॉइस पे हुआ था. So it is also a very good symbol. घर के बाहर, हाँ एक और चीज, घर के बाहर हम गणपति लगाते हैं. आजकल कई सारे वास्तु वाले लोग ये सिखा रहे हैं कि घर के बाहर द्वारपाल आप गणपति को मत बनाएं, क्योंकि जब पार्वती माँ ने द्वारपाल गणपति को बनाया था तो क्या हुआ था, शिव जी आए थे, उन्होंने गला काट दिया था उनका. सो अगर आप ऐसा करोगे, बट अगेन इट्स योर बिलीफ सिस्टम. आई बिलीव यही बात है, ये सबकॉन्शियस माइंड की बात है कि आप क्या बिलीव करते हो. सो व्हाट आई बिलीव, गणपति को हमने घर के बाहर बिठाया है कि आप हमारे घर की ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, उनको दूर हटाओ. बट उसके लिए एक चीज जो कई लोगों को नहीं पता होती है, द बैक ऑफ गणपति हैज अ लक्ष्मी. जो पीठ है गणपति की, वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है घर के अंदर. दैट इज वाई जिनने गणपति बाहर लगा रखा है उनको घर में प्रॉब्लम्स फेस होती होगी पैसों की, ऐसा. तो उन गणपति के बिल्कुल पीछे वापस लक्ष्मी गणेश लगा दीजिए आप, या तो सिर्फ गणपति लगा दीजिए. सो दोनों का बैक्स ऐसे होना चाहिए, बाहर वाले गणेश जी का बैक और अंदर वाले गणेश जी का बैक, दोनों को टच करना है ऐसे. सो ये वाले गणेश जी हमारे घर में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, नॉलेज दे रहे हैं. वो वाले गणेश जी बाहर से ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स निकाल रहे हैं. देन एक और बहुत अच्छा वास्तु है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है आपका मेन गेट सही डायरेक्शन में नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, पंचमुखी हनुमान जी की आप एक पोस्टर लगा दीजिए. जैसे ही घर में एंटर करें, सामने छोटा सा लगा दें आप. इसमें बहुत पावर है. It removes all kinds of vastu issues from your house.
And there was one more thing I was about to tell you. Yeah, so यंत्रों की जब मैं बात कर रही थी, कई लोगों की कार एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, या स्कूटर एक्सीडेंट्स, ऐसा एक्सीडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा होते हैं. They can keep a मारुति यंत्र in their cars. So मारुति यंत्र किनका है? हनुमान जी का. हनुमान जी क्या है? मंगल. मंगल से एक्सीडेंट्स. So you can just put 2:2 4. So मारुति यंत्र आप अपने गाड़ी में रखें. स्पेसिफिकली जो लोग रेड कार लेते हैं, आई डोंट रेकमेंड रेड कार खरीदना, बट जो लोग रेड कार खरीदते हैं उनको अपनी कार में लाल यंत्र रखें. क्योंकि व्हाट हैपन्स, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, समटाइम्स वंस इन ईयर आपका मार्केश मंगल आता है, और उस समय अगर आप अपनी गाड़ी को रैश चला रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, you can meet with an accident. So why get into a problematic zone? Why buy a red car? So कई लोगों को सूट होती है, but for me, if I suggest you, I don't suggest red color. In case you have bought already, you have put a Maruti यंत्र. So यंत्रों में भी बहुत पावर है ठीक करने का. So I highly recommend कि आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखें, आप वास्तुशास्त्र सीखें.